Morning, all of you. We come here again for the mechanics of solid lecture. In previous classes, we solved numericals on compound bar. Okay. In present class, we further extend this lecture to solve more numericals. Okay. As you all know, in compound bar. Okay. It's basically a statically indeterminate system. Statically indeterminate system. That means the force equation are not sufficient to find the unknowns. Okay, that means equation of static equilibrium isn't sufficient to find the unknown reactions. That means equations of forces or force balance isn't sufficient to find the unknowns. That means in order to solve the numericals on compound bar, we need additional equation. Okay, and that additional equation is compatibility condition. Compatibility condition. That means in order to solve the numericals on compound bar, we need two equations. The first equation is static equilibrium equation. As we all know, it's a more or less a force balance, and second one is compatibility condition. Compatibility condition. I repeat, it's one. Compound bar is basically an example of statically indeterminate system. That means in this system, equation of forces or force balance isn't sufficient to find the unknowns. Okay, that means to solve the numericals on compound bar, we required additional equation, and that additional equation is comes from the compatibility condition. That means in order to solve the numericals, we require two equations or condition, whatever you say, and the first one is static equilibrium equation and the second one is compatibility condition. Okay, based on these two concepts, we solve the numericals. Okay, the concepts remain the same, but for this lecture I extend this lecture and choose slightly difficult numerical compared to previous ones. Okay, as you see, a round steel rod is supported in a recess surrounded by a coaxial bar tube as shown in figure. Okay, तो एक राउंड स्टील की रड है जो रिसेस में सपोर्टेड है एक ब्रास के ट्यूब के अंदर, और ये जो लोड लग रही है ये मोर और लेस एक तरह की रिजिड प्लेट है। रिजिड प्लेट का क्या मतलब हुआ कि आप जो लोड लगने के बाद इसमें किसी तरह का डिफॉर्मेशन या इलोंगेशन नहीं होगा। दैट मीन्स आफ्टर application of forces, rigid plate doesn't deform। ठीक है, इसमें एक चीज़ और दी हुई है इस क्वेश्चन में कि ब्रास के ट्यूब और स्टील के रड में एक गैप है 0.08 mm का। सपोज कर लीजिए कि कोई भी लोड इस पर लगेगी तो 0.08 mm के बाद के कंप्रेशन के बाद स्टील में वो लोड लगना स्टार्ट होगा, या स्टील की जो कंप्रेशन होगी वो 0.08 mm के बाद होनी स्टार्ट होगी। आई रिपीट दिस वन कि सपोज कर लीजिए कोई भी एक लोड लग रहा है, सपोज कर लीजिए कि लोड लग रही है इस पर 10 किलो न्यूटन, तो 10 किलो न्यूटन क्या करेगा, फर्स्ट 0.08 mm कंप्रेशन को सरपास करेगा, फिर उसके बाद स्टील में कंप्रेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैक्सिमम परमिसिबल एक्सियल लोड। ये लोड की वैल्यू पूछी जा रही है एंड द वैल्यूज दी हुई है मैक्सिमम स्ट्रेस की इस ब्रास और स्टील के रड की,
एंड द सेकेंड वन में क्या है कि द अमाउंट बाय विच द ट्यूब इज शॉर्टेंड बाय लोड, ऐसा पूछा जा रहा है कि ट्यूब कितना फाइनली शॉर्ट करेगा जब दोनों में जो स्ट्रेसेस होगी, मैक्सिमम स्ट्रेस वो सेम होगी। तो अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो एक चीज़ क्वेश्चन के स्टेटमेंट में है कि ये एक तरह की कोएक्सियल सिस्टम है। इसका मतलब क्या है कि जो एक सेंट्रल एक्सिस होगी वो सबके लिए कॉमन है, और इसी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट ये डायमीटर्स दी हुई है। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले अगर हम लोग प्रॉपर सॉल्यूशन की तरफ जाएं तो सबसे पहले हम लोग एरिया निकाल लेते हैं इसकी, रड और ट्यूब की। ओके, तो फर्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ स्टील रड, तो उसको हमने ए एस बोल दिया। तो ए एस क्या होगी, रड है और इसकी डायमीटर दी हुई है क्वेश्चन में 36 mm। आप इसको देख सकते हैं, इसकी डायमीटर स्टील रड की 36 mm दी हुई है। तो एरिया अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो π/4d², इसकी वैल्यू आ गई 324 पाई mm²। सिमिलरली जो होगी आपकी जो ब्रास है वो ट्यूब है, और इसी ट्यूब के अंदर आपकी स्टील की रड रिसेस में सपोर्टेड है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। ठीक है, स्टील रड और सपोर्टेड इन रिसेस। तो अब ये ट्यूब है तो ट्यूब एक जस्ट लाइक रिंग की तरह बिहेव करेगी। तो इसकी एरिया क्या होगी, π/4 डी आउटर माइनस डी इनर का स्क्वायर, डी आउटर का स्क्वायर माइनस डी इनर का स्क्वायर, मोर प्रिसाइजली यू कैन से। तो 60 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर। देखिए इसकी आउटर डायमीटर 60 mm है और इनर डायमीटर 50 mm है, ये mm²। इसको अगर आप गुना भाग करेंगे तो ये 275 पाई mm² आएगी। ठीक है, एरिया हमने फाइंड कर लिया दोनों का। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है आपसे मैक्सिमम परमिसिबल लोड पूछ रहा है उस वो, और डायरेक्शन भी उसका पूछा जा रहा है। तो डायरेक्शन तो ऑब्वियस है कि ये वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। सपोज कर लीजिए कि उस फिगर का उस प्लेट की अगर हम एफबीडी बनाना चाहें तो सपोज कर लीजिए कि लोड इस पे एक WB लग रहा है। WB हम इसलिए बोल रहे हैं कि फर्स्ट 0.08 mm के लिए जो भी कंप्रेशन आएगा वो सिर्फ ब्रास के ट्यूब में आएगी। ठीक है, तो WB लग रही है। तो अब स्टील की रड और ब्रास के ट्यूब में एक डिफरेंस है, मतलब एक गैप है, और वो जो गैप है वो 0.08 mm का है। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि लेट WB जो है लोड अप्लाई हो रहा है फॉर द इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द ट्यूब बिफोर कंप्रेशन ऑफ द रड स्टार्ट्स। मतलब आपको ही पता है कि 0.08 mm के बाद ही इस स्टील की रड में कंप्रेशन स्टार्ट होगी। ये ट्यूब है आपकी ब्रास की। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि लेट WB be the load applied for the initial compression of the tube before कंप्रेशन ऑफ द रड स्टार्ट। मतलब ये है कि 0.08 कंप्रेशन होने के बाद ही स्टील की कंप्रेशन स्टार्ट होगी। कंप्रेशन ऑफ द रड स्टार्ट। ओके, देन तो सपोज करिए कि फॉर द 0.08 mm हमने बोल दिया है उसको डेल्टा बी एक्सटेंशन हुई डेल्टा बी। PL/A से क्या लिख सकते हैं, PB/, इस केस में वो WB था, आपने WB एज्यूम किया है, तो WB इंटू लेंथ ऑफ B, एरिया ऑफ ब्रास ट्यूब इंटू यंग्स मॉडुलस। अब WB/AB जो होगी ये कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा B होगी। ठीक है, तो यहाँ से फॉर द इनिशियल कंप्रेशन 0.08 mm आप डेल्टा बी को पुट कर दीजिए 0.08 mm। तो यहाँ से सिग्मा बी हो गई, लेंथ हो गई आपकी 300 mm।
आप क्वेश्चन को देखिए, लेंथ कितनी है इस ब्रास के ट्यूब की, 300 mm, ठीक है। इनिशियल कंप्रेशन 0.08 mm। तो सिंपली अब हमने PL/A में सारे वैल्यूज पुट किया और एरिया की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने ब्रास के ट्यूब की, 275 पाई mm²। एंड यंग्स मॉडुलस आई थिंक इट इज गिवन इन द क्वेश्चन 105 गीगा पास्कल, 105 गीगा पास्कल। ओके, एरिया निकाली थी हमने 275 पाई mm², उसको हमने पुट कर दिया। उसको बदल दीजिए आप न्यूटन पर mm² में, गीगा पास्कल को, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी एक ही अननोन है सिग्मा बी, तो सिग्मा बी की जो वैल्यू आएगी वो 28 न्यूटन पर mm² आएगी, ठीक है। तो अब देखिए आप यहाँ आपकी सिग्मा बी कितनी आ गई, सिग्मा बी इक्वल टू 28 मेगा पास्कल। एंड डब्ल्यू बी क्या हो जाएगा, देयरफॉर डब्ल्यू बी क्या हो जाएगा, सिग्मा बी इंटू एरिया ऑफ ब्रास ट्यूब, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 28 न्यूटन पर mm², ये न्यूटन पर mm² भी है, इंटू 275 पाई mm²। यहाँ से कितना आएगा ये 24190 न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखिए, डब्ल्यू बी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली फॉर द इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द ब्रास ट्यूब जो 0.08 mm के बराबर है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 0.08 mm के कंप्रेशन को कवर अप करने के लिए, ये 0.08 mm का कंप्रेशन है, इसको मतलब सरपास करने में जो इसकी जो स्ट्रेस आ गई वो आ गई आपकी 28 मेगा पास्कल, ठीक है। अब जो फर्दर लोडिंग होगी, जो फर्दर लोडिंग होगी जब स्टील के रड में कंप्रेशन स्टार्ट होगी, स्टील के रड में मान लीजिए कि इसने, ये आपकी रिजिड प्लेट थी, ये आपका प्लेट है, ठीक है, ये जो गैप था यही आपका 0.08 mm था, ठीक है। तो अब जब 0.08 mm इसने पास कर लिया तो अब स्टील के रड में कंप्रेशन स्टार्ट होगी। तो इस कंप्रेशन को सरपास करने में कॉपर की ट्यूब ने अपने मैक्सिमम जो उसकी स्ट्रेंथ थी 75 मेगा पास्कल, उसमें से 28 मेगा पास्कल खर्च कर दी, मतलब मोर और लेस इसने कंज्यूम कर दिया 28 मेगा पास्कल। देखिए मैक्सिमम जो स्ट्रेस थी ब्रास के ट्यूब की, बार बार मेरे मुंह से कॉपर निकल जा रहा है, ये ब्रास की ट्यूब की वो देखिए 75 मेगा पास्कल थी फॉर ब्रास। तो इस 75 में से इसने 0.08 mm कंप्रेशन को सरपास करने में अपना 28 मेगा पास्कल कंज्यूम कर दिया। तो अब फर्दर लोडिंग करने के लिए इसके पास जो स्ट्रेस बचेगी जिसमें आप इसको फर्दर लोड कर सकते हैं वो कितनी बचेगी, वो 75 माइनस 28 होगी। दैट मीन्स देयरफॉर ब्रास के ट्यूब के लिए, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू एडिशनल लोड कैन बी, ये जो एडिशनल लोड है वो है, हम उस लोड की बात कर रहे हैं जब स्टील के रड में कंप्रेशन स्टार्ट हो गई है, मतलब डब्ल्यू बी की बात हो चुकी है। तो अब उस फर्दर लोड के लिए, उस फर्दर एक्सटेंशन के लिए जो इस केस में कंप्रेशन है, जब स्टील के रड में कंप्रेशन स्टार्ट होगी तो इसके पास कितना स्ट्रेस अवेलेबल रहेगा उस लोड को कैरी करने के लिए। तो 75 टोटल इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी और 28 आपने कंज्यूम कर दी, तो बची कितनी, 47 मेगा पास्कल। यहाँ एक क्लियर हो गई। अब हम फिर से ये मानते हैं कि लेट डब्ल्यू बी द एडिशनल लोड टू कंप्रेस बोथ, मतलब जब 0.08 mm का की ये लिमिट क्रॉस हो गई तो अब दोनों में क्या होगा, कंप्रेशन स्टार्ट होगा, मतलब एक्चुअल में जो पोजीशन होगी अब इस डब्ल्यू की वो यहाँ से स्टार्ट होगी, मतलब अब दोनों में, इस पार्ट में भी इस पार्ट में कंप्रेशन स्टार्ट होगा।
ठीक है, अभी हम कुछ स्टील के रड के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो अब फिर से आप एज्यूम कर लीजिए, लेट W बी द एडिशनल लोड टू compress both the tube and bar, that is ट्यूब एंड बार, इसको आप रड भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर से एक एज्यूम कर लीजिए, लिया हमने कि लेट सिग्मा एस बी द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन स्टील रड और एंड sigma be the stress induced in brass tube। ठीक है, तो अब हमारे पास, अब देखिए ये कंपाउंड बार का केस है, आफ्टर 0.08 mm, ये किसका केस होगा, कंपाउंड बार का। इसको आप फिर से देख लीजिए, ये आपकी ट्यूब है, ये आपकी रड थी, और यहाँ से, तो जब ये यहाँ से अब स्टार्ट हो गई, जब 0.08 mm की ये सरपास हो गई फॉर द कॉपर ट्यूब, तो अब ये कंपाउंड बार का केस है। तो फॉर द केस ऑफ कंपाउंड बार वी रिक्वायर्ड टू इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ये मोर और लेस आपका फोर्स बैलेंस है। तो इसमें क्या होगा, जब सपोज कर लीजिए कि इसमें कंप्रेशन स्टार्ट हो गई, अभी आप अब ये मानिए कि 0.08 mm को हमने क्रॉस कर दिया, तो लोड W हो गई। तो ये आपकी कॉपर की ट्यूब है, ये स्टील है, आप तीनों सेम लेवल में आ गए, क्योंकि ये 0.08 mm को सरपास कर चुकी है। तो ये एक्चुअल में ट्यूब के रिसेस के अंदर वो चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप कन्फ्यूज नहीं करिए, इस ट्यूब के अंदर इसको ये इंसर्ट किया गया है। तो अब W लगने के बाद, ये आपकी रिजिड प्लेट है, ठीक है, ये आपकी रिजिड प्लेट है। तो W लगने के बाद इसमें क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा। तो इसके ये क्या करेगा, ये ट्यूब और रड क्या करेगी, इसको वर्टिकली अप करेगी। तो ये फोर्स मान लीजिए कि डेवलप्ड हो गया आपका, क्या बोला जाए इसको, ये ट्यूब थी तो PB, और ये आपका PS हो गया। आप 2 PB मत कर दीजिएगा, आपको डायग्राम में लग रहा है, चूंकि एक्चुअल में वो ट्यूब है, कुछ इस तरह से है वो। ठीक है, इसके अंदर एक स्टील की रड इंसर्ट की हुई है, और यहाँ पे एक रिजिड प्लेट है जिसपे एक फोर्स W लग रहा है। तो ट्यूब और रड क्या करेगी, दोनों इसको रेसिस्ट करेगी। तो ट्यूब ने लगाया PB रेसिस्टिव फोर्स, और इसने लगाया PS स्टील ने। ठीक है, तो अब अगर हम फोर्स बैलेंस लिखें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फोर्स इन स्टील रड, फोर्स इन ब्रास ट्यूब प्लस फोर्स इन स्टील रड इक्वल टू टोटल फोर्स W जो आप लगा रहे हैं। PB को आप लिख सकते हैं स्ट्रेस इनटू एरिया B फ्रॉम द स्ट्रेस और फोर्स रिलेशन, एंड सिग्मा S इंटू AS, ये W वो W है जब दोनों में कंप्रेशन स्टार्ट हो गई, चाहे वो ब्रास की ट्यूब हो चाहे वो स्टील की रड हो, मतलब 0.08 mm को वो सरपास कर चुकी है। तो यहाँ से इक्वेशन 1 ये आ गया। ठीक है, अब हमारे पास जो दूसरा कंडीशन है वो है आपका कंपेटिबिलिटी कंडीशन। इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि देखिए, जब 0.08 mm की लिमिट को पास कर जाएगी, तो दोनों में क्या होगा, दोनों में कंप्रेशन सेम होगा। ठीक है, ये दोनों आपकी ब्रास की ट्यूब है, और ये स्टील की रड है, ये आपकी रिजिड प्लेट है, यार स्टील की बार कह लीजिए मोर प्रिसाइजली, क्वेश्चन में उसको बार से इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपकी रिजिड प्लेट है, यहाँ W लग रहा है।
तो सपोज कर लीजिए कि अगर आप इस रिजिड प्लेट का एफबीटी बनाएंगे तो ये फोर्सेस जो होगी ब्रास के ट्यूब में, ये ऊपर आई थी पीबी और ये पीएस आया था। इसका मतलब क्या है कि इस ब्रास के ट्यूब में और स्टील की रड में जो ट्यूब फोर्स लगाएगा वो मतलब किस डायरेक्शन में लगाएगा, नीचे। उसकी उसकी क्या होगी मैग्नीट्यूड, उसकी मैग्नीट्यूड होगी पीबी। आई रिपीट दिस वन, अगर ये पीबी वर्टिकल लग रहा है, अगर आप इसका एबीडी ड्रॉ करते हैं इस रिजिड प्लेट का, तो ये एक डब्लू लगता है, यहाँ पे एक पीबी और यहाँ पे एक पीएस। और ये पीबी और पीएस क्या है, ट्यूब और बार के द्वारा लगने वाला फोर्स इस रिजिड प्लेट पे। तो इसका मतलब क्या है कि ये रिजिड प्लेट जो है, अगर हम इस ट्यूब का और बार का एबीडी बनाएं तो ये क्या करेगी, इस ट्यूब का अगर एबीडी बनाए तो ये पीबी नीचे हो जाएगी, सिमिलरली ये पीएस नीचे हो जाएगी। ये पीबी और जो पीएस है ये इस रिजिड प्लेट के द्वारा इस पीबी इस ट्यूब और इस स्टील रड पे लगने वाला फोर्स है, ठीक है। तो इसका अब देखिए दोनों फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड है। ये पीबी और ये जो पीएस है, ये पीबी और ये पीएस क्या है, रिजिड प्लेट के द्वारा ट्यूब और बार स्टील के बार पे लगने वाला फोर्स है। क्योंकि ये फोर्स वर्टिकली अपवर्ड है तो ये क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन से, ठीक है। तो अब देखिए दोनों फोर्स इस ब्रास के ट्यूब में और स्टील के रड में क्या करेगी, कंप्रेशन करेगी। और फ्रॉम द कंपेटिबिलिटी कंडीशन वी कैन से कि दोनों की कंप्रेशन क्या होगी, बराबर होगी, अगर इन दोनों को कंपाउंड बार सिस्टम में रहना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि फ्रॉम द कंपेटिबिलिटी कंडीशन, फ्रॉम compatibility कंडीशन, यहाँ से क्या आएगा, कंप्रेशन इन ब्रास ट्यूब इक्वल टू कंप्रेशन इन स्टील बार। तो फिर से आप लिख दीजिए हुक्स लॉ से पी एल अपॉन ए फॉर द प्रीमिस्टिक बार। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सिग्मा बी इंटू लेंथ बी अपॉन ई बी, पी बी अपॉन ए बी को हमने सिग्मा बी लिख दिया है, चीज़ें आप समझ रहे होंगे, एल एस अपॉन ई एस। ये सिग्मा बी क्या है, पी बी अपॉन ए बी। तो देखिए पी एल अपॉन ए का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पी एस अपॉन ए एस, ठीक है। तो यहाँ से सिग्मा एस क्या होगा, यहाँ से सिग्मा एस हो जाएगा आपका सिग्मा बी एल बी इंटू ई एस अपॉन एल एस इंटू ई बी, ठीक है। तो सारे वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे तो सिग्मा एस था ना, सिग्मा एस, तो सिग्मा एस क्या था, एल बी अपॉन एल एस इंटू ई एस अपॉन ई बी, सेम पैरामीटर्स को हमने एक साथ रखा 3b। तो लेंथ ऑफ ब्रास ट्यूब कितनी है 300, लेंथ ऑफ स्टील ट्यूब 400 है, देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखेंगे, ये देखिए 400 है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 300 और ये 100, मतलब यहाँ से लेके 300 और ये वाला पार्ट 100, तो 400 हो गया ये। आप ऐसा कह सकते हैं कि उस 400 में से 0.08 mm कम हो रहा है, लेकिन 400 के रिस्पेक्ट में 0.08 mm काफ़ी कम वैल्यू है, तो उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। एक्चुअल में ये 400 माइनस 0.08 होगा, लेकिन चूंकि 0.08 इस 400 के रिस्पेक्ट में काफ़ी कम है, तो उसको हम लोग नेगलेक्ट कर दे रहे हैं फॉर द कैलकुलेशन। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, इट्स नॉट ए बिग डील, उसके आंसर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 210.105, ये गीगा पास्कल में, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, सेम यूनिट है सिग्मा बी। यहाँ से रिलेशन जो आएगा, इसलिए सिग्मा एस जो होगा 1.5 सिग्मा बी, ये कंपेटिबिलिटी कंडीशन से आया, इसको हमने इक्वेशन 2 बोल दिया, ठीक है। अब हम कह सकते हैं देयरफॉर मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन स्टील रड वो कितनी होगी,
सपोज कर लीजिए कि आपने सिग्मा एस मैक्स बोल दिया स्टील रड में मैक्स, तो ये हो जाएगी आपकी सिग्मा बी मैक्स और गुना फैक्टर 1.5 जो आपने प्रीवियस केस में निकाला है। तो अगर आप दोनों के लिए मैक्स कंडीशन लिखिएगा तो ये भी मैक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रीवियस पहले हमने बताया था कि टोटल 75 थी इसकी वैल्यू मैक्सिमम की, उसमें से आपने 28 कंज्यूम कर दिया, ये बचा था 47। तो अब 47 ही इसकी मैक्सिमम स्ट्रेस है फॉर द कंप्रेशन दैट सरपास आफ्टर 0.8 mm। तो यहाँ 47 ही इसकी मैक्सिमम स्ट्रेस बचेगी जो फर्दर लोड के लिए कैरीड अवे होगी। ये वैल्यू कितनी आई? 70.5 मेगा पास्कल। अब देखिए सिग्मा एस की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है वो आई थिंक 105 मेगा पास्कल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो आपकी 105 मेगा पास्कल है मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस आर स्टील 105 है। तो इसका मतलब है कि ये देखिए वैल्यू 70.5 जो आई है वो क्या है, मतलब लेस देन है, दैट इज इन दिस केस सिग्मा एस मैक्स इज लेस देन 105 मेगा पास्कल। मतलब ये सेफ है, मतलब जो भी हमने कैलकुलेशंस किया है वो विद इन द परमिसिबल लिमिट ऑफ स्ट्रेस है स्टील के रड के लिए। तो देयरफॉर 10 डब्लू क्या हो जाएगा, सिग्मा बी ए बी फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखिए प्लस सिग्मा एस ए एस, एक्चुअल में ये पी बी है, ये एक्चुअल में पी एस है। तो सारे वैल्यूज अब आपके लिए नोन है। सिग्मा बी की वैल्यू आई है आपकी 70.5, एरिया आया था ब्रास ट्यूब की 324 पाई mm², ये आपकी मेगा पास्कल है। ठीक है, प्लस सिग्मा एस हो गई 40, इसमें कुछ मिस्टेक हो गया लग रहा है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ये आपकी पीबी थी, तो पीबी 47 था ना, तो 47 न्यूटन पर mm² मेगा पास्कल थी, इसको आप न्यूटन पर mm² भी लिख सकते हैं। एरिया की कितनी थी ट्यूब की 275 पाई mm², प्लस 70.5 स्टील की मैक्सिमम स्ट्रेस आई थी न्यूटन पर mm²। एरिया कितनी थी इसकी 324 पाई ना, 324 पाई mm², ये पाई है। तो इसको आप लिख दीजिए तो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा ये पाई है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसको आप गुना भाग करिएगा तो 112,365 न्यूटन पर, सॉरी न्यूटन आएगा, ये फोर्स है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं इसकी यूनिट बैलेंस करके, यहाँ से mm² इस mm² से कैंसल आउट हो जाएगा, तो एक्चुअल में इसकी यूनिट क्या बचेगी, फोर्स की यूनिट न्यूटन ही बचेगी। तो हमने मैक्सिमम लोड निकाल लिया। अब देयरफॉर मैक्सिमम लोड कितना ये परमिट कर सकता है, देयरफॉर मैक्सिमम लोड कितना हो जाएगा, प्रीवियसली निकाला था हमने डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी आई थी, डब्ल्यू बी की वैल्यू आई थी 24190 न्यूटन, प्लस अभी कितनी आई इसकी 112,365 न्यूटन। ये टोटल आ जाएगा आपका 136,555 न्यूटन, या इसको आप ऐसे कह सकते हैं 136.55 किलो न्यूटन। देखिए ये वैल्यू हमने पहले ही फाइंड कर रखी है 24190। अगर आपको याद होगा डब्ल्यू बी की वैल्यू फॉर द इनिशियल कंप्रेशन ऑफ 0.08 mm, अगर आपको याद हो 24190, देखिए फॉर द इनिशियल कंप्रेशन ऑफ 0.08 mm। तो ये हमने पार्ट 1 सॉल्व कर लिया। अब पार्ट 2 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। पार्ट 2 में ये कह रहा है कि दोनों की स्ट्रेस सेम होगी, तो आपको टोटल शॉर्टनिंग ऑफ द ब्रास ट्यूब फाइंड करनी है। ठीक है, तो एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, लेट डेल्टा बी द
shortening of the steel rod this will be also be the additional shortening of द ब्रास ट्यूब। मैंने बताया था फ्रॉम द कंपेटिबिलिटी कंडीशन कि अगर स्टील के रड में आपकी कंप्रेशन डेल्टा हो गई, ठीक है, तो फ्रॉम द कंपेटिबिलिटी कंडीशन क्या होगा, उस ब्रास ट्यूब में भी कंप्रेशन कितनी होगी, डेल्टा ही होगी। ये अलग बात है कि ब्रास ट्यूब की टोटल जो शॉर्टनिंग होगी वो डेल्टा बी प्लस डेल्टा होगी, जहाँ डेल्टा बी 0.08 mm है, ठीक है। जब स्टील के रड में शॉर्टनिंग होना स्टार्ट होगी तो अगर वो शॉर्टनिंग डेल्टा है तो ब्रास के ट्यूब में टोटल शॉर्टनिंग कितनी होगी, 0.08 mm प्लस डेल्टा। ये हम लोग देख चुके हैं, आपको फिर से डायग्राम अगर हम रिकैप कर दें तो ये गैप था स्टील के रड में और ब्रास के ट्यूब में। तो अगर ये स्टील के रड में डेल्टा डिफॉर्मेशन हो गई, कंप्रेशन जो है, तो ब्रास में 0.08 mm प्लस डेल्टा हो जाएगी टू मेंटेन द कॉम्पेटिबिलिटी बिटवीन दीज टू बार्स, मतलब these two sections you can say, okay। तो then you can say then डेल्टा बी प्लस डेल्टा क्या होगा, टोटल शॉर्टनिंग ऑफ द ब्रास ट्यूब, तो सिग्मा बी इंटू एल बी अपॉन ई बी। एक्चुअल में पी सिग्मा बी क्या है, पी बी अपॉन ए बी, पी एल अपॉन ए ई से, ठीक है। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दीजिए, डेल्टा बी नोन है आपके लिए 0.08 mm प्लस डेल्टा, उसको ब्रैकेट में रख लीजिए। सिग्मा बी की वैल्यू जो है वो 105 है ना, इसकी मैक्सिमम जो इसकी, नहीं दोनों में स्ट्रेस सेम पूछ रहा है, ठीक है। तो सिग्मा बी यहाँ से लेंथ एल बी कितनी हो जाएगी इसकी 300, इसकी यंग्स मॉडुलस कितनी है 105 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ से सिग्मा बी कितना आएगा, यहाँ से सिग्मा बी आएगा आपकी 105 10⁻³ इंटू 0.08 प्लस डेल्टा अपॉन 300। ध्यान रखिए न्यूटन पर mm स्क्वायर में है, ये आपकी mm में है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात ये है। इसको अगर आप फिर से देख लें तो ये यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और चीज़ें यहाँ से सिग्मा बी अपॉन 300 हो जाएगा। तो आप इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए कुछ देर के लिए, ठीक है। एंड स्टील ट्यूब में कितनी होगी, एंड शॉर्टनिंग इन स्टील ट्यूब, जिसको हम डेल्टा ही बोल रहे हैं फ्रॉम द कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशंस, ये क्या हो जाएगी, सिग्मा एस इंटू एल एस अपॉन ई एस, ओके। तो आप सिग्मा एस को आप अगर इक्वेट करेंगे तो सिग्मा एस क्या हो जाएगी, डेल्टा इंटू, ओके, डेल्टा इंटू क्या हो जाएगी, डेल्टा इंटू ई एस अपॉन एल एस। तो डेल्टा इंटू ई एस हो गई आपकी 210 गीगा पास्कल, 10⁻³ मेगा पास्कल हो जाएगी, ये 210 है। और एल एस थी आपकी 400 mm। अब क्वेश्चन में देखिए कि ये दोनों आपसे मैक्सिमम शॉर्टनिंग पूछ रहा है, जब दोनों में मैक्सिमम स्ट्रेस सेम हो जाए। क्वेश्चन के स्टेटमेंट को रिकैप कर सकते हैं। द अमाउंट बाय विच ट्यूब इज शॉर्टेंड बाय लोड इफ द कंप्रेसिव स्ट्रेस इन स्टील एंड ब्रास आर द सेम। मतलब अब आपको स्ट्रेस को बराबर करना है फॉर दिस कंडीशन। तो आप इसको बराबर कर दीजिए, इसको इक्वेशन 4 कह दीजिए। तो आप कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सिग्मा बी जो है वो सिग्मा एस के बराबर है। यहाँ से सिग्मा बी कितना आया था
105 into 10 raised to the power 3 into 0.08 plus delta upon 300 इक्वल टू 210 इंटू 10 का पावर 3 डेल्टा बटा 400। इसको देख लीजिए आप, ये आई थी आपकी सिग्मा एस डेल्टा इंटू 210 इंटू 10 का पावर 3 डेल्टा अपॉन 400, ये सिग्मा एस हो गया। उसके बाद देखिए सिग्मा वी वैल्यू हो गई 105 10 का पावर 3 0.08 अपॉन 300। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक ही अननोन है डेल्टा, और ये कुछ इस तरह से आ जाएगी सॉल्व करने के बाद 0.08 प्लस डेल्टा इक्वल टू 1.5 डेल्टा। इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ डेल्टा ही एक अननोन है, अगर आप चीज़ों को ध्यान से देखें तो ये इसी को सॉल्व करना है। यहाँ से ये आ जाएगी, यहाँ से क्या हो जाएगा 0.5 डेल्टा इक्वल टू 0.08, तो देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू 0.16 mm है डेल्टा, तो mm में ही आएगी। हैंस टोटल शॉर्टनिंग कितनी हो जाएगी, हैंस टोटल शॉर्टनिंग ऑफ द ट्यूब कितनी हो जाएगी, ये इनिशियल कितनी थी, डैट मीन्स 0 पॉइंट, मतलब ये क्या हो जाएगा, ब्रास में जो इनिशियल थी प्लस जो आपने डेल्टा की, तो ब्रास में थी वो 0.08 mm, अभी डेल्टा आपने 0.16 mm निकाला है, ये कितना हो जाएगा 0.24 mm। तो इस तरह से हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को सॉल्व कर लिया। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें ध्यान से तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट था। पहला पार्ट वो ये पूछ रहा था कि टोटल लोड कितना लगेगा परमिसिबल, तो उसके लिए हमने क्या किया था, उस लोड को दो भाग में बांटा था। फॉर द इनिशियल कंप्रेशन ऑफ 0.8 mm, वो उसमें क्या लग रहा था, उसमें सिर्फ कंप्रेशन आ रहा था, ठीक है। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने क्या किया कि एक लोड निकाल लिया, ओके। तो लोड निकाल लिया हमने, और हमने ये बोला कि सॉरी, ये लोड की वैल्यू थी 24190। अब इस लोड को कंज्यूम करने में, कैरी करने में कुछ स्ट्रेस इसकी कंज्यूम हो गई जो 28 मेगापास्कल थी। तो फर्दर लोडिंग जो होगी जिसमें दोनों में कंप्रेशन स्टार्ट होगा वो सिर्फ ब्रास ट्यूब के 47 मेगापास्कल के कोरस्पॉन्डिंग ही होगी। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने एक नया लोड W एज्यूम किया जब दोनों में कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अब दोनों की कंप्रेशन क्या होगी, सेम होगी फ्रॉम द कॉम्पिटिबिलिटी कंडीशन से। तो पहले हमने फोर्स का इक्वेशन लिखा क्योंकि अब ये कंपाउंड बार की तरह बिहेव करेगी, तो वहाँ से हमने फोर्स बैलेंस किया। फिर हमने कॉम्पिटिबिलिटी का कंडीशन लिखा और ये कहा कि दोनों में जो कंप्रेशन होगी वो सेम होगी। तो वहाँ से हमने रिलेशन इस्टेब्लिश किया डेल्टा बी और डेल्टा एस में, और फाइनली हमने 47 के कोरस्पॉन्डिंग ब्रास ट्यूब के कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू निकाली स्टील के रड में जो 70.5 आई, और वो हमने देखा कि वो 105 जो उसकी मैक्सिमम लिमिट है उससे कम है। तो उसको हमने पुट करके लोडिंग जो एडिशनल लोड था उसकी वैल्यू निकाल ली। फिर टोटल लोड को हमने उसमें ऐड कर दिया WB प्लस W को। फिर नेक्स्ट केस में क्या था कि स्ट्रेस सेम था, तो टोटल शॉर्टनिंग ऑफ द ब्रास ट्यूब आप वो से पूछा जा रहा था। तो हमने उसमें भी क्या किया कि अब टोटल शॉर्टनिंग अगर ब्रास ट्यूब की है तो वो 0.08 mm डेल्टा बी प्लस डेल्टा के बराबर होगी। तो वो सिग्मा बी LB अपॉन EB जो आपकी PL अपॉन AE की रिलेशन है उससे आएगी। तो हमने इसको दोनों को बराबर कर दिया। दिस स्ट्रेस लिमिट ऑफ सिग्मा बी एंड सिग्मा एस क्वेश्चन में क्या रखा है, तो वहाँ से हमने एडिशनल जो आपकी कंप्रेशन आई डेल्टा उसको हमने फाइंड किया। तो टोटल शॉर्टनिंग हमने ब्रास ट्यूब की निकाल ली 0.24 mm। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।